Hello, my dear student. Have a pleasant morning to one you all. I welcome you on your video lecture class. In our previous lecture, we have started the topic, the parts of speech. The parts of speech topic is very important topic for you in English language. I told you yesterday. And one more thing is that I discussed with you that there are 8 parts of speech in English language in parts of speech. So the first one is noun. I discussed it with you yesterday. And second one is pronoun. Okay. So yesterday I told you what is noun. Noun is the name of any person, place or thing, and the kinds of noun I also discussed with you. Okay. So now your next one is pronoun. The next one is pronoun. So pronouns are the words. Pronouns are the words that we use in the place of noun. Pronouns are the word that we use in a place of noun as a substitute of noun. Fine. So I'm just giving you examples so that you come to know what is pronoun here. Suppose that I am writing here Anjali is singing a melodious song. Okay, look at blackboard. Anjali is singing a melodious song. So here Anjali, what is Anjali over here? Anjali. It's a proper noun because it's a name of particular person. It's a name of individual person. So it's a proper noun. And if we don't want to take the name of Anjali, so what's the word that we use in a place of Anjali? Which word we can use in a place of Anjali? So in a place of Anjali, we can use she. She is singing a melodious song. So the definition here, the definition is clarifies. The definition is that the words that we use in a place of noun. So here Anjali is a noun and in a place of Anjali we are using she. It means it's a pronoun. Fine. So the example is clarifying the definition. The second one, boys are playing. The boys are playing in the field. The boys are playing in the field. Okay. So the boys, which noun is this? It's a noun. And which noun is it? It's a common noun. It's a common noun. Fine. So which word you can use in a place of it? Which word you can use in a place of it? So the boys, it's a plural in number. It's a plural in number. So we have to use they here. They. They are playing in the field. They are playing in the field. So student, this is your pronoun. And if there is a boy, the boy, only boy is written, the boy is playing in the field. So in a place of boy you have to write he because it's a singular in number. So we have to use singular pronoun. If your noun is singular, so we have to use singular pronoun. If the noun is plural, so we have to use plural pronoun. Okay. So your definition is clear that the words that we use in a place of noun, these words are called pronouns. Okay. Now, pronouns are also many in number, just like personal pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, like this, reflexive pronoun, and emphatic pronoun. These are the names of the pronoun. And your third one is your adjective. Okay. So adjective means quality. Adjective means quality. I am writing here the definition of it. And adjective. An adjective is a word
we use in a place of, no, it's not the definition. I'm just writing over here the wrong definition. Just make it clear. An adjective is a word. An adjective is a word that qualifies a noun or pronoun. A noun or pronoun. An adjective is a word that qualifies a noun or pronoun. So I'm just giving you the explanation of this one. Adjective is a word. It's a type of the word that points out to noun or pronoun. That points out to noun and pronoun. It means it specifies a noun. It gives some meaning to a pronoun. It means it always give any quality to noun or pronoun. Okay. So an adjective is a word that qualifies noun or pronoun. So noun or pronoun, these are greater in number, just like name of the person, and the words that we use in a place of noun, these are in the category of the pronoun. So suppose that you want to say that I'm a good boy. I'm a good boy. So what is I here? I is a pronoun and good is your adjective because it qualifies your pronoun. So your adjective always qualifies your pronoun. Adjective always qualifies your pronoun or noun. Fine. And here I am writing one example for you. The example is that the naughty students are making a noise in the class. Okay. So here we can see that students is your noun. It's clear to you. Student is a common noun. But before student, before noun, which word is written over? Which word? Naughty is written. So what is naughty here? Naughty is your adjective because it's showing the quality of your noun. Naughty is your adjective. It's showing the quality of your noun, and the students here noun. But so we have to know this thing that your adjective always comes. Adjective always come first. It's always come before your noun or before your noun. The naughty students are making a noise in the class. Fine. Next example is for you. They all were doing they all were giving their marvelous performance like this. Okay. So student, you have seen that an adjective is a word that qualifies a noun or pronoun. Adjective is a word that qualifies a noun or pronoun. And just like you can say, many more sentences are there. She is singing a melodious song. So here melodious is your adjective.
I'm doing good job. So good is your adjective. And one more thing is that like this, she's intelligent girl, she's a smart girl, she's beautiful girl, and my mother is a kind-hearted lady. My father is a laborious person. I'm very hard worker. My friend is jolly natured person, and you are so kind hearted, you are so generous, like this. So the words that we use, the words that we use to qualify your noun or pronoun, or you can say to qualify some persons, these are in the category of adjective. These are in the category of adjective. Adjective की category में आते हैं. Then after we will see the fourth one. These are also many number. I will not discuss the parts of the kinds of adjective, noun and pronoun. Number 4, verb. So in a simple way we can say verb, that is called kriya in Hindi, and the action words are called verb, and the word that denotes the action of the subject, the word that denotes the working of the subject, that is your verb. Okay, so the words by which we come to know which work is going on, which type of the work is going on. So these are the category of the verb. Many verbs are there, just like auxiliaries verb, modal auxiliaries verb, linking verbs, helping verb, main verb. These are different types of the verbs are there. So verb is the most important part in each and every sentence. Without using any verb, your sentence cannot be completed. We have to use verb, and if we use a verb in a single sentence, only one main verb in a sentence, so that is called a simple sentence. And if there are more than main verb in the sentence, so these sentences are in the category of the complex or compound. This is also a rule. And in active voice we use only sometimes we use helping verbs and sometimes we use main verb. But in passive voice, it's a thing that in active voice we use only we use first form, second form, and third form of the verb according to the tense. If the sentence sentence is based on the present tense, so we use only first form of the main verb. If the sentence is present perfect, we have to use the third form of the main verb. But in passive voice, this is the difference between two. In passive voice, we use only third form of the main verb with it helping verbs according to the tense. Suppose that. So I'm just giving you the clarification of this one. Just like a sentence is written here, a very simple sentence. I write a letter. So here what is verb? Write is a main verb. It's the first form of the main verb, and the sentence is present perfect. Sorry, the sentence is present indefinite. It's a present indefinite sentence. Okay. And if this is the active voice sentence. And if you want to change the sentence into passive form, so how will you change it? You have to write over here. The subject will be converted into object, and the object will be converted into subject, and subject will be converted into object. So a letter is your object, it will be converted into subject, a letter. Okay. And this is the present indefinite. In the present indefinite we use is rm. So according to the singular number of the subject, we have to use is. So a letter is fine, and write is the first form of the main verb. We have to change it into third form of the main verb. So a letter is written. A letter is written by me. Okay. So student, you can see that in the active voice only first form of the main verb is used, but in the passive voice we have to use the third form of the main verb. In each and every tense, it's a compulsion that we have to use third form of the main verb in the passive voice. So this is the
only rule for active and passive voice, but here we are studying only parts of the speech, and I just told you something about it. That is not the part of this one. So you have got the verb, you have got the verb. These are many in number, just like helping verbs. And you can see that be. Be is a verb. It's a main verb. Be is a verb, and this one become, became, and become. Okay. So this one is the first form, become. This one is the second form, and this one is the third form. So be is the main verb. It's a main verb, and the family member of this one is are, am, was, were. So student, you can see that these 1, 2, 3, 4, 5, these 5 helping verbs, are the family member of this one. This is the boss. This is the boss of that family. So be is the main verb, and these are the family member of this one. And become, became, become. So in which form we use, in which way we use be? Be will always be used as a main verb. Suppose that you have to write a sentence. The sentence is like this. The sentence is like this. Always be regular and punctual in class. Okay, so here we are seeing that be, this one. So what is it? It is your main verb. Be is your main verb, and it is used here as a main verb in the sentence, because I have already told you that without using any main verb, the sentence cannot be completed. And it does not matter that you have to use only main verb in the sentence, then your sentence will be completed. But there must be helping verb on main verb. If the helping verb is used in the sentence, but it will be used as a main verb in the sentence. Just like the sentence is I'm a good boy. So I'm a good boy, here am is your helping verb, but it works as a main verb in the sentence. Fine. So you have seen that always be regular and punctual in class, like this. Be positive towards your life. Never be disappointed towards your life. Always be optimistic. Never do bad or wrong things towards anyone. Always be humble to others. Always try to be good to others, like this. So you are seeing that in which way, in which sense we are using be as a main verb. So be is the main verb, and is, are, am, was, were. These are the words that are the family member of this one. So student, your work topic is completed, your work, and then another one is your adverb. Okay, so adverb verbs is really very important, this one. An adverb is a word that, qualifies your verb and your adjective also. That qualifies your verb, your adjective and verb. But what was the definition of adjective? The definition of adjective was that it qualifies your noun and pronoun. It qualifies your noun and pronoun. But here the definition of adverb is that it qualifies your verb and adjective. It means to say that when an adverb is a word that adds something new to the meaning of your verb or an adjective. It adds something new. It adds something extra to the meaning of verb and adjective. यानी verb में और adjective में कुछ extra add कर देता है. That is your adverb. Basically, we come to know that the words which added ly, these are in the category of an adverb, just like slowly, nicely, properly, like this. But
Any words are also just like I'm writing here the sentence so that you can get it very well. She is singing very melodious song. Okay. So here you have to identify that what's your adverb. Fine. So she's a pronoun, as you know that she's a pronoun. I just taught you, and it is the substitute of any name of the girl. Suppose that there is a name of Anjali and Neha. Anjali is singing a very melodious song. So if you are saying that Anjali, so it's a noun, and if you are saying she is singing a melodious song, so it's a pronoun. So she is a pronoun here. Is it's your helping verb. You know this thing. And singing. What is singing over here? Singing is the word that denotes the action of the sentence. Singing is a word that denotes the action of the sentence. So singing is your verb. And melodious, melodious. So this is melodious song. This word is showing the quality of the song. This word is showing the quality of the song. So this is your adjective. And what is this word here? It adds something to the meaning of the adjective. Melodious song, many people sing the melodious song, but very few people sing very melodious song. उसमें कुछ extra add कर दिया है. You are smart, you are looking smart, but you are looking very smart. So very word adds something to the meaning of an adjective. Suppose that is a sentence. You are running very fast. Okay, we are running very fast. So it adds something to the meaning of. Verb. So you have seen the words that adds something new, adds something extra to the meaning of your verb or an adjective. So these words are in the category of an adverb. So student, you have seen noun. You have seen noun, pronoun, adjective, verb and adverb. So 5 topics is completed in the portion of parts of the speech, and 3 are remaining. I hope so that you are getting it very well. This is the foundation of your English language. This is the basic part of English language. So you have to get it thoroughly so that you can grasp the coming chapter very well, because the syllabus is very broad. And you have to get it very well, and you have to capture all the things very well. I hope so that is enough for you today. Till then, thank you and have a nice day to one and all. Hello student, today I will teach you chapter is बल and गति के नियम. बल और गति के नियम. जैसा कि मैंने आपको बताया, गति के नियम और बल दोनों को ट्राई किसने किया है? आइजैक न्यूटन ने. बट जो हमारे गति के नियम है, इसको पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था. कि किसी नर समतल से जब कोई वस्तु वहां से सरकती है या नीचे की ओर छोड़ी जाती है, तो एक समान चाल से आती है. बट उसमें यदि हम बल के मान को बदलना चाहें, उसकी चाल को बदलना चाहें, तो उसका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. कि यहाँ पर बल और चाल को दोनों को देखकर न्यूटन ने 3 नियम दिए थे जो गति के नियम कहलाए. न्यूटन का फर्स्ट नियम जो मैं आपको बता चुका हूँ, वस्तु तभी तक विराम में रहती है जब तक उस पर बल ना लगाया जाए. वस्तु तभी तक गति में रहती है जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए. कुल मिलाकर के जो इसमें फर्स्ट नियम था, इनर्शिया का नियम था, उसे इनर्शिया का नियम भी कहते हैं. मेन जड़त्व का नियम भी कहते हैं. कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है, बल न लगाया जाए उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है. तो वैसे ही अब टॉपिक पे आते हैं कि न्यूटन का सेकेंड नियम. न्यूटन के जो सेकेंड नियम में था, वहां पर हमने बल के फॉर्मूले को टाइप किया था F=ma, जहां पर F= क्या था? F=ma, जहां पर m क्या था? द्रव्यमान और a क्या था? त्वरण. जो कि त्वरण को आप पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं.
अपनी क्लास कक्षा में। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नाउ मास क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान होता है। और एफ क्या होता है? जो वस्तु में द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है उसे हम बल कहते हैं। ये सेकंड नियम में किसने बताया था? न्यूटन ने। बट अब आते हैं थर्ड नियम पर। थर्ड नियम में क्या था? जब किसी वस्तु पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये हमारा एक्शन होता है। इस एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई होते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं समान और विपरीत दिशा में। जब कोई हम क्रिया करते हैं तो उस क्रिया की सदैव एक प्रतिक्रिया होती है। वो प्रतिक्रिया उस क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में होती है। इसी को हम न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम या न्यूटन का थर्ड नियम कहते हैं। न्यूटन के थर्ड नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। अब टॉपिक पे आते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो संवेग संरक्षण के नियम को समझने के लिए आपको पहले संवेग पता होना चाहिए। संवेग क्या होता है? कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो हमें पता है कि वस्तु तभी गतिमान हो सकती है जब उसके पास क्या होगा? द्रव्यमान। क्योंकि फोर्स लगाने के लिए भी ऑब्जेक्ट के पास क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। जब तक कि फोर्स पर द्रव्यमान नहीं होगा तो उस पर गति फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो वस्तु के पास द्रव्यमान होता है। अगर ये मूविंग पोजीशन पर है तो इसके पास एक कांस्टेंट क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो इसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास संवेग है। क्या है? संवेग। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है बेटा? संवेग है। और संवेग का जैसे हमने द्रव्यमान का सिंबल m लिया है और वेग का सिंबल v लिया है, वैसे संवेग का सिंबल हम क्या लेते हैं? v लेते हैं। तो जो संवेग था वो संवेग क्या होता है? P = m/v। कंफ्यूज मत होइएगा। बल का जो फॉर्मूला था द्रव्यमान इंटू त्वरण था, बट जो संवेग का है वो द्रव्यमान इंटू वेग है। तो मींस अगर वस्तु एक कांस्टेंट चार्ज चलती है तो सिर्फ उसके पास क्या होता है? संवेग होता है। बट वो अनिश्चित चार्ज चले मींस उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी प्रारंभिक वो क्या है? u। और गति प्रारंभ करने के बाद कितनी हो गई v। तो इन दिस टाइम जो होगा उसके पास फोर्स होगा m। एक्सीलरेशन, बट एक्सीलरेशन हमें कंफर्म है m। और एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस बाय t। बट क्या होगा? v - u/t। क्या होता है हमारे पास? a। जो आप पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन की दर होती है। वेग का परिवर्तन v - का u। अंतिम और प्रारंभिक बाय क्या हो गया? समय। ये हम किसको लिख सकते हैं? त्वरण को। तो बट f m की जगह लिखते हैं v - u/t। तो हमारे पास क्या हो गया? फोर्स m v - u/t। नाउ देन एनी प्रॉब्लम? बट व्हाट इज संवेग संरक्षण नियम? तो आपने जान लिया संवेग क्या होता है। मैंने आपको बताया संवेग क्या होता है। संवेग तब होता है जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो उसके पास द्रव्यमान और वेग दोनों होता है। तो द्रव्यमान और वेग दोनों प्रेजेंट होने पर हम कह सकते हैं कि जब द्रव्यमान जहां होगा वेग जहां होगा। तो द्रव्यमान और वेग पे कौन निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। जो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है वो कौन होता है? संवेग। तो जिस ऑब्जेक्ट पर द्रव्यमान वेग होगा उसके पास क्या होगा? संवेग होगा। अगर द्रव्यमान परिवर्तनीय है तो संवेग भी परिवर्तनीय होगा, क्योंकि एक ही बॉडी का कभी द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। बट अगर वेग परिवर्तित होगा तो संवेग भी परिवर्तित होगा। नाउ अगर किसी बॉडी के पास द्रव्यमान है और वेग परिवर्तन की वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है? उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो द्रव्यमान और त्वरण पर कौन निर्भर करता है? बल। तो उसके पास बॉडी के पास क्या होगा? फोर्स होगा। बट किसी बॉडी के पास द्रव्यमान और वेग है तो उसके पास क्या होगा? संवेग होगा। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि ये एक सिस्टम है कि दो बॉडीज हैं जो एक दूसरे पर या एक ही दिशा पर गतिमान है। तो आफ्टर सम टाइम वो कोलाइज करती है, मतलब टकराती है। तो टकराने से पहले, जब वो टकराने से पहले थी, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। ना तो टक्कर से पहले, इसे समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा। एक बॉडी है A, एक बॉडी है B। अब ये एक दूसरे की ओर गति मान, ये इस तरह गतिमान हो, ये इस तरह गतिमान। तो जब ये गति कर रही होगी तो इसके पास द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? m। जो इसके पास द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? m। लेट कर ले। अगर ये गति कर रही है तो इस समय इसके पास इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है? u है। और जो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? u है। बट कुछ समय बाद टक्कर के पश्चात, तो
बताइए जब दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो क्या होगा? जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो बी बॉडी ए पे बल लगाएगी और ए बॉडी बी पे लगाएगी, जिससे दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में गति करके वापस हो जाएंगे। मींस जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे की ओर आती हैं तो टकराने के बाद ये बॉडी फिर चली जाती है, ये बॉडी इस तरफ चली जाती है। तो जैसे ही टकराते हैं, टकराने के बाद उनका द्रव्यमान बदल जाता है क्या? सपोज दैट एक बॉल है, हमने उसको दीवार पे मारा और दीवार से टकरा कर वापस आई, तो क्या उसका द्रव्यमान कम होता है? नहीं, द्रव्यमान कम नहीं होता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। क्या कम होती है? वेलोसिटी कम हो जाती है। तो वैसे ही टॉपिक पे आते हैं, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो आपको ध्यान ये देना है कि वेलोसिटी जब कम होती है तो चेंज क्या हो रहा है? टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात क्या चेंज होता है? टक्कर के पश्चात वस्तु का द्रव्यमान नहीं चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो लेट कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर आकर दोनों टकराती हैं बॉडीज ए और बॉडी बी, तो टक्कर के पश्चात इनकी गति की डायरेक्शन क्या होगी? बदल जाएगी। तो पहले ये इस ओर आ रही थी, तो किस वेग से आ रही थी? यूए। ये किससे आ रही थी? यूबी। अब बदल गई है तो हम लेट कर लेते हैं, क्या हो गई है? वीबी। और क्या हो गई है बेटा? सॉरी, ए आ रही है तो इसका वेग होगा तो डीए और बी बॉडी का वेग होगा तो वी। एनी प्रॉब्लम? भाई ये तो मास है, ए बॉडी का है तो सिंपल क्या ले लिया? एमए। बी बॉडी का मास है तो क्या ले लिया? एमवी। अगर इसका वेग प्रारंभिक यू है तो हमने क्या ले लिया? बी बॉडी का वेग, जिससे कंफर्म हो जाए u हमारा प्रारंभिक वेग होता है। अगर a लगा दिया तो a बॉडी का वेग और v यूज कर लिया सफिक्स को, तो क्या हो जाएगा बेटा? b बॉडी का वेग। नाउ टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, तो आप देखिए टक्कर से पहले इसका संवेग निकालोगे तो क्या निकलेगा? इन दिस टाइम जो संवेग हो क्या है इसका? m a और u जो वेग है वो क्या हो गया? u। और इस बॉडी का संवेग जो आप निकालेंगे वो क्या होगा? b। और b बॉडी का है तो p। हमें पता है कि संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इनटू वेग। तो नाउ इन दिस टाइम जो इसका मास है वो क्या है? m v। और इन दिस टाइम इस समय जो इसका वेग है वो क्या है? u v। नाउ ये इसका हो गया a बॉडी का a, इसका क्या निकल आया? संवेग और संवेग। बट आफ्टर सम टाइम जब टकरा करके वापस जाती है तो मास तो बदला नहीं, जो इसके पास मास है वो क्या है? ma। इसके पास जो भी द्रव्यमान है वही मास को हम मास जो बोल रहे हैं द्रव्यमान होता है, वो क्या हो गया? mv। अब ये दोनों अपोजिट, इन दिस टाइम जो इसके पास होगा संवेग, तो संवेग अगर वेग बदल गया तो संवेग बदलेगा, तो संवेग बदल गया तो हमने मान लिया p डैश a। a बॉडी का संवेग क्या हो गया? द्रव्यमान तो वही होगा बट संवेग क्या हो गया? va। एंड इसके पास क्या हो गया? pv डैश। नाउ m b और v b। क्लियर? तो हम जब जैसे जानते हैं कि जब वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर टकरा कर वापस जाती है तो वेग बदलने पर संवेग भी बदल जाता है। बट यहाँ पर समझना ये है कि टक्कर से पहले जो परिणामी वेग हमारे पास संवेग है, परिणामी संवेग का मतलब क्या होता है? टक्कर से पहले का संवेग क्या है हमारे पास? टक्कर से पहले का संवेग pa और क्या है? pv। तो ये क्या हो गया? परिणामी। इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो गया? परिणामी। और टक्कर के बाद का जो संवेग है वो क्या है? pa डैश प्लस pv डैश। जो इसका परिणामी है वो क्या होगा? इक्वल और कांस्टेंट होगा। क्या होगा? इक्वल और कांस्टेंट। एनी प्रॉब्लम? नाउ देन यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय, दो या दो से अधिक वस्तुएं, मतलब ये दो भी हो सकती है, इधर से दो, इधर से एक, इधर से तीन, इधर से एक, तो दो हो और दो से अधिक हो तो चलेगी, पर दो से कम नहीं होगी, क्योंकि दो से कम होगी तो अकेली वस्तु किसी से टकरा नहीं सकती है। हमें फाइट करने के लिए कम से कम कितने लोग? दो लोग। अकेले फाइट कर सकते हो कम से कम दो, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए सबसे लड़ सकते हो। वैसे यहाँ टक्कर होने के लिए कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा कोई भी हो सकता है। बट अब यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बल कार्य ना करे, ये कंडीशन है इसकी कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करना चाहिए बाहर से, तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। तो उसका संयुक्त संवेग क्या होगा? नियत होगा। मींस जब ऑब्जेक्ट दूसरे की ओर आती है तो इसका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये अपोजिट एक्शन रिएक्शन से ये खुद एक फोर्स अप्लाई कर रही है, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। उस समय उस टाइम उसका संवेग क्या होता है? नियत होता है। इससे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। बट अर्थात इसे कह सकते हैं टक्कर से पहले परिणामी संवेग, मतलब जब टक्कर हुई थी टक्कर से पहले संवेग क्या था? pa और क्या था? pv। तो परिणामी संवेग हमने क्या कर लिया? pa और pv। फिर क्या है?
टक्कर के पश्चात परिणामी संवेग। तो टक्कर होने के बाद क्या हो गया है, पीए डैश और पीबी डैश। तो पीए डैश प्लस पीबी डैश ऐड कर दिया तो परिणामी और परिणामी दोनों क्या होते हैं, नियत होते हैं। नियत तो दोनों क्या होते हैं, ऑलवेज बराबर होते हैं। अगर उस टक्कर से पहले हमारा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था तो टक्कर के बाद भी क्या होगा, टोटल 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं कि टक्कर होने के पहले भी संवेग संरक्षण वही था, टक्कर होने के बाद भी उसका परिणामी संवेग संरक्षण वही था। संवेग संरक्षण के परिणामी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसी को संवेग संरक्षण कहते हैं। हम कह सकते हैं संवेग संरक्षण में वो है दो या दो से अधिक वस्तुओं या समुदाय एक दूसरे से टकराती हैं तो टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर से बाद कुल संवेग एक दूसरे के बराबर व नियत होते हैं। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इससे हम ये भी कह सकते हैं, और जैसा कि यहाँ पर लिखा है, यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं के समुदाय पर कोई बाह्य कार्य न करे, जब कोई बाह्य कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। ये तो क्लियर हो गया, उसका संयुक्त संवेग क्या होगा, नियत होगा। अब यहाँ से हम क्लियर करते हैं इसके लिए प्रूव करने के लिए। तो या दो से अधिक वस्तुएं हो गई तो एक दूसरे से संयुक्त संवेग करती हैं। अब इसको क्लियर करके मैं बताता हूँ। जैसा जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं तो ए वस्तु भी इस पे फोर्स लगाती है, बी वस्तु भी इस पे फोर्स लगाती है, जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है। तो हम बता सकते हैं, तो मान लेते हैं Fa फोर्स हो गया और क्या हो गया, Fb फोर्स। तो न्यूटन के तृतीय नियम से, किससे, न्यूटन के तृतीय नियम से। तो न्यूटन के तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे क्या होती है, बराबर होती है, पर क्या होती है, विपरीत होती है। तो जो Fa फोर्स है वो Fb के एक्शन रिएक्शन दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बट दोनों में बराबर तो है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए क्या होगा, Vb माइनस का होगा। हमें पता है Fa, तो Fa रखोगे तो पहले का द्रव्यमान हमारे पास क्या है, Ma, क्या है, Ma पहली ऑब्जेक्ट का, और उसका जो वेग है हम क्या लेंगे, एक्सीलरेशन, वो हमारे पास क्या हो गया, A बराबर। दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए जब लोगे तो दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का Mb और क्या हो जाएगा, AB। अब हम जब वस्तु का ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फॉर्मूला A, तो मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, UA, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, UV आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर क्या लिखोगे, MA, तो क्या हो गया, VA माइनस का UA बाई क्या होगा, D। सेम टाइम पर ये भी आगे टकराती है तो इसके लिए क्या होगा, माइनस का MB इंटू में VB माइनस का UB बाई D। देन T से T क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, MA ब्रैकेट में क्या होगा, BA माइनस का UA, नाउ इक्वल टू माइनस का MB ब्रैकेट में BB माइनस का UB। अब इसका हम m का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो क्या आएगा, बताइए। तो मल्टीप्लाई करते हैं m का, तो जैसे आप m का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m का VA से करेंगे तो क्या होगा, MA VA, फिर क्या है, माइनस MA और क्या होगा हमारे पास, UA। नाउ इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, माइनस का, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BB, फिर माइनस का MB माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, MB और UB। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, V और V वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड करते हैं। तो हमारे पास ये V है और ये V है, तो इसको इधर लेकर आते हैं तो हमारे पास क्या होगा, MA VA, फिर क्या होगा, प्लस का MB और VB इक्वल टू, फिर क्या होगा हमारे पास, हम UA उधर लेके आते हैं तो MA UA प्लस का MB UB, जिसे हम कह सकते हैं टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद संवेग। ये क्या गया, पहली ऑब्जेक्ट का संवेग दूसरी ऑब्जेक्ट का संवेग जब भी है तो हमारा टक्कर के बाद का है, U और U टक्कर से पहले था तो संवेग का योग और संवेग का योग। हम बोल सकते हैं P A डैश प्लस PE डैश इक्वल टू
यूए से क्या हो जाएगा ये, जैसा मैंने फिगर बताया था, प्लस का ये क्या हो गया ई बी, आरबीएस क्या होंगे कांस्टेंट होंगे और इक्वल होंगे, लिख सकते हैं टेक्टर से बाद का फुल समवेग टेक्टर के पहले फुल समवेग, आरबीएस क्या होते हैं नियत होते हैं, इसी को हम समवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसा कि मैं आपको फिर से एक बार बता सकता हूँ इस टॉपिक को क्लियर करके, तो आप समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करा देता हूँ जैसे आपको ना समझ में आ रहा हो। तो संवेग संरक्षण के नियम पे दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए, दो ऑब्जेक्ट ऐसे मेक कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरी ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर आ रही है। तो देखिए ध्यान देते हैं, हमारे पास टेक्टर से पहले एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान ma है, जो किस वेग से आ रही है ua वेग से। फिर टेक्टर से पहले दूसरी ऑब्जेक्ट है b, जिसके पास जो मास है वो द्रव्यमान b है, दूसरी ऑब्जेक्ट का है। ये ऑब्जेक्ट a है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट b है, जो ये भी साइड आ रही है, किस वेग से आ रही है ub से। तो देखा जाए तो इनका संवेग जब बनाएंगे तो संवेग क्या बनेगा p a, मतलब a ऑब्जेक्ट का संवेग द्रव्यमान इनटू वेग, द्रव्यमान हमारे पास क्या u है, बट a ऑब्जेक्ट का है तो यहाँ पर सिंबल क्या लगा देंगे a लगा देंगे। फिर वैसे ये p है हमारे पास, इसका संवेग होगा, बट कौन से ऑब्जेक्ट का है b ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे b। हमें पता है संवेग इनटू क्या होगा वेग, तो यहाँ से वेग अभी क्या है हमारा प्रारंभिक वेग को u से करते हैं, अंतिम वेग को v से करते हैं, तो यहाँ पे u है तो हम क्या लेंगे u लेंगे, बट b ऑब्जेक्ट का है तो इसमें क्या लगा दोगे v और बट दोनों जब टकरा जाती हैं आफ्टर t समय बाद, कितने समय बाद t समय बाद, t समय बाद जब दोनों ऑब्जेक्ट टकराती हैं, तो जब दोनों टकराएंगी एक दूसरे से a ऑब्जेक्ट और b ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है ma, इसका मास कितना है mb, तो जब वो टकराएंगे, टकराने के बाद विपरीत दिशा में वापस लेंगे तो क्या वही वेग से जाएंगे जिस वेग से आएंगे, नहीं, वेग बदल जाएगा या तो वेग बढ़ जाएगा, तो वेग परिवर्तित हो जाएगा। ये a ऑब्जेक्ट इधर गई थी, टकरा के कहाँ जाएगी, लेकिन किस वेग से गई थी u वेग से, किस वेग से वापस आएगी अब v की वेग से, ये भी किस वेग से जा रही है v b वेग से। तो इसका संवेग बनाओगे तो p a, बट इसका संवेग p a ले चुके हैं तो इस a ऑब्जेक्ट का क्या लोगे p a डैश, जो बदल चुका है, द्रव्यमान ma और वेग का फॉर्म प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास v a। नाउ एंड pv डैश द्रव्यमान m v और वेग इस समय क्या है हमारे पास v, एनी कॉलम। ये संवेग टक्कर से पहले के हमारे संवेग है और टक्कर के बाद के संवेग है। तो हम न्यूटन का अगर थर्ड लॉ लगाते हैं तो आप बताइए, जब ये इससे टकराएगी तो फोर्स लगाएगी, जब इस पे टकराएगी तो फोर्स लगाएगी, तो हमारे पास परिणामी बल आ जाएगा, वो क्या होगा एफ ए बराबर एफ बी, बट ये क्या होगा माइनस का। जब एफ ए मतलब कि ए ऑब्जेक्ट का फोर्स, ए ऑब्जेक्ट का फोर्स लोगे तो द्रव्यमान ए और त्वरण ए बराबर द्रव्यमान बी माइनस माइनस यहाँ पर, फिर त्वरण बी हम लिखते हैं क्योंकि हमें पता है क्योंकि ए बराबर क्या होता है बी माइनस यू बाई टी। पुट करते हैं तो एम ए है तो यहाँ पर ए की जगह रखेंगे बी माइनस यू बाई टी, बट किसका था ए का था, तो जैसे ही ए का रखोगे तो हमारे पास टॉपिक में क्या आएगा ए के लिए बी ए और यू ए इक्वल टू एम बी, क्या आ जाएगा हमारे पास बी बी माइनस का यू बी अपॉन टी। टी से टी क्या हो गया कैंसिल, एम ए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए माइनस का एम ए यू ए आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एम बी 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 माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी हो जाएगा। बी बी एक साइड कर लो, पूरा बी अलग लेकर आते हैं तो हमारे पास क्या होगा एम ए और बी ए प्लस का एम बी और बी बी। ये टॉपिक माइनस का था पूरा, इसको उठा के बराबर के इस तरफ ले आए, फिर क्या बराबर ये पूरा माइनस का इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब देखिए एम ए बी बी डैश एम बी बी डैश बी डैश, तो यहाँ पर रख दीजिए ए डैश प्लस बी बी डैश ए प्लस बी। यही है संवेग संरक्षण का, टक्कर के बाद का कुल संवेग, टक्कर के पहले कुल संवेग, आगे क्या होते हैं बराबर होते हैं।
welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Students, हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? आर.एस. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने, जिसके बेसिस क्या थे कि कोशिका की संरचना कैसी, यानी कोशिका किस प्रकार की, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। तो ये चीज हम लोग को पता करनी थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं होता है, प्रिमिटिव कंडीशन में होता है या फिर एब्सेंट होता है, तो वो हो गई प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्या था? यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक में क्या होगा? जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी वो प्योर डेफिनेट होता है, फुली डेवलप्ड होता है और उसकी सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। और वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी झिल्लियों से घिरे होते हैं। ये चीज थी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स की। नेक्स्ट क्या था कि सेल जो बॉडी है उसके जो जीवन का आधार है वो क्या है? कोशिका है, वो तो हमें पता है, लेकिन और क्या है कि मतलब उसकी श्रेणी क्या है? श्रेणी क्या है? प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या फिर डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होगा? हम लोग को पता है कि प्रोड्यूसर एक ही चीज होती है जो किसी चीज को बनाए। तो प्रोड्यूसर क्या है हमारे पूरे जीव जगत में? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी वो अपने भोजन के लिए किसी भी दूसरे जीवधारी या फिर जीव जगत पर निर्भर नहीं है, तो वो क्या होगा? प्रोड्यूसर। या फिर अपना काम जो भी, जैसे प्लांट्स के अलावा हम भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, हम भी किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, यानी जितने भी एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो हम लोग को क्या पता था कि प्लांट्स कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? स्वपोषी, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से वो क्या कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं सनलाइट से, तो वो क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है और वो बॉडी में उनके फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाता है। और वही भोजन हम लोग करते हैं जो प्लांट से हमें प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी चीज क्या थी कि उन्होंने क्या बताया कि एनिमल्स क्या होते हैं? उनमें लोकोमोशन होता है, यानी एनिमल वही जो लोकोमोशन करेगा, और एनिमल में सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो लोकोमोशन नहीं करते। ऐसा नहीं कि आज हमने प्लांट यहाँ लगाया था कल हमें दूसरी जगह मिलेगा, नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर किसका होता है? एनिमल्स का होता है। सेंसेशन की बात की जाए, सेंसेशन का मतलब होता है आप किसी एनिमल को टच करो, या फिर कोई एनिमल आपके पास है, किसी छोटे से ऑर्गेनिज्म की बात करो, इंसेक्ट की बात करो, तो अगर आप उसको उसके सामने हो या फिर आपको उसे आपसे डर लग रहा है या उसे ये लग रहा है कि वो आपसे सुरक्षित नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर इतने सेंस होते हैं कि वो आपको हटा के दूसरी जगह जा सकता है। दूसरी चीज, अगर हमें पता है कि यहाँ पर कोई चीज सही नहीं है या फिर यहाँ पे हम सुरक्षित नहीं है, तो ये चीज हमारे जो सिक्स सेंस होते हैं वो हमें पता चल जाती है। तो इससे क्या होता है? हमें पता चलता है कि एनिमल्स में सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है? फुली डेवलप होता है। तो ये हो गई प्लांट्स की बात। तो प्लांट्स क्या थे? प्रोड्यूसर थे। अब कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर क्या होंगे? जो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे। प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं तो एनिमल्स भी होते हैं और ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, जो भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, यानी जो भी प्लांट्स की फूल पत्ती जो भी खाते हैं वो, प्लस उसके साथ जो उसका प्रोडक्ट आता है वो सब चीजें क्या हो गई? डिपेंडेंसी हम लोग शो कर रहे हैं कि प्लांट्स कैसा, जीवन की गति की दिशा कैसी। तो प्रोड्यूसर क्या हो गए? प्लांट हो गए, ठीक है। कंज्यूमर क्या हो गए? कंज्यूमर वो हो गए जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब बात आती है डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर वो होता है जो सड़ी गली चीजों पे डिपेंड होता है, जैसे अचार वगैरह जो होता है या कोई खाना खराब हो जाता है, ब्रेड वगैरह होती है, उसमें सब क्या होता है? वो डिकम्पोजर का वर्क करते हैं। क्यों? उसको वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं और कार्बनिक पदार्थों में वापस चेंज कर देते हैं, तो वो हो गया डिकम्पोजर। तो ये तीन चीजें हमें पता थी कि प्लांट कैसा है, यानी जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो कैसा है? प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या फिर डिकम्पोजर। उसके अकॉर्डिंग उसकी श्रृंखला में हम लोग उसे बांट सकते हैं। प्लस तीसरी चीज क्या थी कि इन्होंने शैवाल को तीन कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड कर रखा था, तो वो बात अलग हो गई। मोनेरा प्रोटिस्टा जो भी प्लांट थी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, वो हो गया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? उपजगत एम्ब्रियोफाइटा। दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, एक था थैलोफाइटा, एक था एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा क्या था? जहां पर कोई प्लांट थैलस की यानी किसी थक्के की तरीके रखा रहता है, जहां पे हमें प्लांट की स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं समझ आती, डेफिनेट नहीं होती है वो क्या होता है? थैलोफाइटा। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग एम्ब्रियोफाइटा की। तो थैलोफाइटा में एक चीज और थी कि वहां पर भ्रूण का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ एम्ब्रियोफाइटा यानी एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इसमें भ्रूण का निर्माण होता है या फिर भ्रूण बनता है। नेक्स्ट है कि सभी कोशिकाओं का कार्य भिन्न, यानी यहाँ पे लेवल डिवीजन हो जाता है। श्रम का जो डिवीजन हो रहा है यहाँ पे कि सेल जो होंगी उसका क्या
बहुकोष्ठी। नेक्स्ट है युग्म बंद युग्म। बंद का मतलब होता है स्टेराइल, यानी फर्टाइल नहीं होगा वो। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। तो यहाँ पर युग्म कैसा होगा, बंद प्रकार का होगा, स्टेराइल होगा। नेक्स्ट है कि पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट। पीढ़ी एकांतरण एक वर्ड है जिसका मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। तो पीढ़ी एकांतरण क्या होता है बेटा कि एक गैमेटोफाइट होता है, एक स्पोरोफाइट होता है। दो कंडीशन होती है प्लांट की, स्टेजेस समझ लो आप। ये स्टेजेस क्या होती है, अल्टरनेट अवस्था में आती रहती है। अल्टरनेट का मतलब अब अल्टरनेट पीढ़ी होगी, एक गैमेटोफाइट की जनरेशन आती है, एक स्पोरोफाइट की आती है। तो एक कभी कभी क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है नहीं जनरेशन में, तो वहां क्या होगा, पीढ़ी एकांतरण नहीं होगा, कि वहां कंटिन्यू क्या होगा, गैमेटोफाइट पाया जाएगा। बट यहाँ पर यानी एम्ब्रियोफाइटा की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, गैमेटोफाइट भी होगा और स्पोरोफाइट भी होगा। तो यहाँ पे इसीलिए पीढ़ी एकांतरण कंटिन्यू होगा, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी एक जनरेशन में क्या होगा, स्पोरोफाइट आएगा, एक जनरेशन में क्या होगा, गैमेटोफाइट आएगा। तो पीढ़ी एकांतरण कैसा है, स्पष्ट है। नेक्स्ट है कि एम्ब्रियोफाइटा को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन सा, फाइलम ब्रायोफाइटा, फाइलम ट्रैकियोफाइटा। कौन कौन से दो फाइलम, एम्ब्रियोफाइटा को, एम्ब्रियोफाइटा क्या था, उपजगत था, सब किंगडम था, सब किंगडम को फिर से यानी सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा को फिर से डिवाइड किया गया फाइलम्स में, फाइलम ब्रायोफाइटा, फाइलम ट्रैकियोफाइटा। तो फाइलम ब्रायोफाइटा के क्या कैरेक्टर थे कि इस वर्ग को पौधों के पादप वर्ग का उभयचर। उभयचर आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे एनिमल्स या ऐसे जीवधारी जो जल स्थल दोनों में निवास करते हैं उनको बोलते हैं उभयचर। तो उभयचर तो हम लोगों ने एक ही चीज सुनी है, मेढक यानी एम्फीबियन कैरेक्टर जो रखता है, जो दोनों तरह के कैरेक्टर रखता है, वो क्या होता है, उभयचर होता है। लेकिन यहाँ पे जो पहला प्लांट आया था यानी ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स क्या कहलाए, पादप जगत के उभयचर। अब पादप जगत के उभयचर है यानी ये भी जल और स्थल दोनों में रहने की क्वालिटी रखता है। तो ये क्या कहलाया, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स में जो एम्फीबियन कैरेक्टर रखता है वो कौन सा फाइलम था, तो आप क्या बताओगे, फाइलम ब्रायोफाइटा। तो ये कौन से थे, पहले ऐसे पौधे जो उभयचर कैरेक्टर रखते हैं यानी उभयचर प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट है जड़ पत्ती उपस्थित। अब जड़ पत्ती उपस्थित का मतलब ये नहीं, वो तो सब में होगा कि प्लांट है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही एम्ब्रियोफाइटा की। एम्ब्रियोफाइटा में किसकी बात की जा रही, फाइलम ब्रायोफाइटा की। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमें किसी भी तरह का स्टेम, प्लांट, लीफ कुछ भी नहीं मिल रहा था क्योंकि वो थैलस की तरह के था। लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइटा की बात करें तो यहाँ पर तना पत्ती दोनों ही प्रेजेंट है और दिखाई देंगे। नेक्स्ट है क्लोरोफिल उपस्थित है। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लांट है तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है कि ये कहाँ पाए जाएंगे, नम ठंडे छायादार स्थानों में पाए जाएंगे। यानी अगर हमें इसे ढूंढना है, इसे जानना है ये कैसा दिखता है, तो कहाँ जाना पड़ेगा, नम ठंडे छायादार स्थानों में। नेक्स्ट है कि लैंगिक अलैंगिक दोनों, यानी यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, लैंगिक भी हो जाएगा और अलैंगिक। अलैंगिक तब होगा जब कंडीशन जो होगी प्लांट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तब वो क्या करेगा, अलैंगिक जनन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है कि संवहन ऊतक अनुपस्थित। संवहन ऊतक वर्ड आया, संवहन ऊतक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। संवहन का मतलब होता है वैस्कुलर टिश्यू जो क्या करेंगे, जल को और भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संवहन ऊतक। तो यहाँ पर वो क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट है स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण। क्यों, एम्ब्रियोफाइटा में भी वही पाया जा रहा था और उसी का फाइलम ये है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पष्ट होगी। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो रिक्सिया, ये क्या है, ब्रायोफाइट्स के नेम है, रिक्सिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया। कुछ टर्म्स आपको याद नहीं पड़ेंगे, एग्जाम्पल है, अच्छे से याद रखना, क्या, रिक्सिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया। अब क्या है, जब दो फाइलम थे, ब्रायोफाइट्स हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ना क्या है, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा क्या, ये भी कैसा है, जल थल दोनों में उपस्थित है। क्यों, ये क्या है, इसका कैरेक्टर पाया जा रहा है कि जल में भी पाया जाएगा और स्थल में भी पाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि जड़ तना पत्ती में विभाजित है, क्योंकि ये कैसा है, डेफिनेट प्लांट है, हम लोग को दिखाई दे सकता है, इसलिए कैसा है, ये भी डिवाइडेड है जड़ तना और पत्ती में। नेक्स्ट है कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। यहाँ पर भी क्या था, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट थे, बट यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्योंकि जितने भी आप फाइलम आगे बढ़ोगे वो क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करता चलता है। यानी हम लोग एक लक्षण को अलग करके, अगर एक लक्षण भी अलग है तो उसको हम लोग अलग फाइलम, अलग क्लास में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला कि यहाँ पर जाइलम फ्लोएम यानी संवहन ऊतक जो थे वो प्रेजेंट थे।
नेक्स्ट है युग्म पौधे छोटा होता है। ये क्या होगा युग्म पौधे यानी गैमेटोफाइट स्टेज होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी, स्पोरोफाइट बड़ी होगी, लेकिन पीढ़ी कांतरण जो होगा वो स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या है कि ट्रैकियोफाइटा को फिर से डिवाइड किया गया किसमें, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। क्या, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। क्या पढ़ना है, उपजगत एम्ब्रियोफाइटा में क्या बन रहा है, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा कि इसमें भ्रूण का विकास होता है। दूसरा क्या है, इसमें कोशिकाओं में डिवीजन होता है यानी लेबर डिवीजन होता है यानी श्रम का जो है विभाजन होगा। नेक्स्ट है कि लैंगिक अंग, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे वो कैसे होंगे, बहुकोषीय होंगे। युग्मक यानी गैमेट जो बनेगा वो कैसा होगा, स्टेराइल प्रवृत्ति का होगा। पीढ़ी कांतरण स्पष्ट होगा। फिर एम्ब्रियोफाइटा को 2 फाइलम्स में डिवाइड किया गया, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा पादप जगत के पहले उभयचर प्लांट्स कहलाए। नेक्स्ट की जड़ तना पत्ती सभी कुछ इसमें प्रेजेंट था, डेफिनेट था। क्लोरोफिल प्रेजेंट था जस्ट बिकॉज ये प्लांट्स हैं। छायादार ठंडे स्थानों पर पाए जा रहे हैं। और क्या, पीढ़ी कांतरण स्पर्श लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के जनन हो रहे। एग्जाम्पल क्या होगा, रिक्शिया, मार्केंजिया, फ्यूनेरिया। ट्रैकियोफाइटा जल थल दोनों में उपस्थित है। जड़ तना पत्ती इनमें भी पाई जाएगी। जाइलम फ्लोएम यहाँ उपस्थित है बट ब्रायोफाइट्स में क्या थे, अनुपस्थित थे। युग्म पौधे छोटी अवस्था होगी और क्या होगी, गैमेटोफाइट जिसे बोलते हैं वो अवस्था छोटी होगी लेकिन पीढ़ी कांतरण प्रॉपर तरीके से स्पष्ट होगा। ट्रैकियोफाइटा को फिर से डिवाइड किया गया 4 क्लासेस में, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ये वर्ड मुझे समझ में आ रहा है कि टफ है बट आप लोग को ये पढ़ना है, इसको जितने बार बोलोगे उतने बार ये आपके क्रम में आ जाएगा। क्या, ट्रैकियोफाइटा को कितने क्लास में रखा गया, 4, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। So students, that's all for today. Thank you. Good morning students. Welcome to the online class of Shivaji Group of Institution. Today we will discuss the chapter क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध है। In this chapter we have earlier discussed कि physical changes and chemical changes के बारे में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे मिश्रण
लेकिन अब उस ठोस में कोई चीज ऐसी है, ठीक है, कोई एक पार्टिकल, कोई एक घटक इस तरीके का है जो किसी लिक्विड में, किसी सॉल्वेंट में घुल सकता है, ठीक है। तो हम ये वाला तरीका अपनाएंगे, कौन सा? उपयुक्त विलायक के द्वारा पृथक्करण। इसमें क्या है, जब मिश्रण में कोई एक घटक किसी विलायक में घुल जाए, मिले वो, और दूसरा ना घुल पाए, तब इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं। जैसे चीनी और बालू का मिश्रण, चीनी ले ली और बालू ले ली, दोनों को मिला दिया आपस में। अब चीनी में से बालू आप कैसे अलग करेंगे? तो क्या करेंगे, चीनी और बालू दोनों के मिश्रण को हम क्या करेंगे? पानी में घोल देंगे। पानी में घोलेंगे तो आप बताइए कौन सी चीज घुल जाएगी? यस, चीनी आपकी घुल जाएगी और जो बालू है वो आपकी बची रहेगी। तो उपयुक्त विलायक के द्वारा पृथक्करण का मतलब यही है कि जब आपका मिश्रण ऐसा है कि दो ऐसी चीजें हैं उसमें जो एक चीज किसी विलायक में घुल जाए और दूसरी ना घुलने पाए, तो क्या होता है कि आपने क्या किया, चीनी और पानी के मिश्रण को, चीनी और बालू का मिश्रण को पानी में डाला, पानी में डालने के बाद आपने घोलना स्टार्ट किया, तो चीनी घुल गई और बालू आपके बची रह गई। तो उससे क्या हुआ कि आपका पृथक्करण हो गया, चीनी तो अलग हो ही गई, चीनी वाला पानी को अलग कर लिया और बालू वाला अलग कर लिया, दोनों चीजों से पृथक्करण हो गया। उसके बाद देखो, अगर आपका मिश्रण चुंबक के द्वारा पृथक्करण, ये भी एक तरीका है दो ठोसों के मिश्रण को अलग करने का। चुंबक के द्वारा पृथक्करण में क्या है, चुंबक इसलिए इसमें लिया गया है, तो मान लो अगर कोई मिश्रण ऐसा है जिसमें लोहे के कण भी है, ठीक है, तो क्योंकि चुंबक जो है वो लोहे को आकर्षित करता है ना, तो जब चुंबक लोहे को आकर्षित करता है तो इसमें क्या होता है कि ऐसा कोई मिश्रण लेना पड़ता है जिस मिश्रण में चुंबक लोहे के भी कण उपस्थित हो। तो क्या करेंगे, किसी मिश्रण से लोहे के कणों को अलग करने के लिए भी हम इस विधि का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, सल्फर होता है, सल्फर जिसको हम हिंदी में गंधक कहते हैं। गंधक में अगर आपने लोहे की छीलन मिला दी, तो गंधक में लोहे की छीलन मिला दी, उसका एक चूर्ण बना लिया। एक चूर्ण की तरह होता है गंधक की सॉलिड और लोहे की चूर्ण भी आपकी सॉलिड। उसको क्या किया, एक प्लेट में रखा और प्लेट में रखने के बाद उसके ऊपर से ऐसे करके मैग्नेट गुजारा, ऐसे 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 करके, तो जितनी भी लोहे की छीलन होगी ना वो मैग्नेट पे जाके चिपक जाएगी। समझ में आ रही है बात? मैग्नेट से जाके लोहे की छीलन चिपक जाएगी और नीचे क्या बच जाएगा आपका? गंधक बच रहेगा। सो इस तरीके से उसका क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। तो हमने आज बात की दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण की। दो ठोस यानी सबसे पहले हम दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण, सबसे पहला तरीका था ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, मिश्रण आपका एक ऐसा होना चाहिए जो सब्लिमेटिंग हो, जो लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए। जैसे अमोनियम क्लोराइड और नमक, जिसमें अमोनियम क्लोराइड क्या है बेटा, सब्लिमेटिंग मटीरियल है, यानी कि सीधे की सीधे गैस में परिवर्तित होने वाला मटीरियल है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, उपयुक्त विलायक के द्वारा पृथक्करण, इसमें क्या है, चीनी और बालू का मिश्रण ले लिया और उसमें क्या किया आपने, पानी में डाल दिया, तो पानी में चीनी घुल गई और बालू बची रह गई। इस तरीके से भी दोनों आपके मिश्रण में अलग हो जाएंगे। उसके बाद देखिए चुंबक के द्वारा पृथक्करण, तो चुंबक के द्वारा पृथक्करण तो तभी होगा जब आपके मिश्रण में लोहे के कण उपस्थित हो, ठीक है। तो ये आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही। इसमें हमने पढ़ा दो ठोसों के मिश्रण और पृथक्करण कितनी तरीके से करते हैं। 3 तरीके हमने आपको बताए हैं, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, चुंबक के द्वारा पृथक्करण और उपयुक्त विलायक के द्वारा पृथक्करण। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसलिए अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए गुड बाय। क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी अर्थमेटिक। कंप्यूटर जो है वो हमारा बाइनरी पे वर्क करता है। कंप्यूटर जो होता है डिजिटल होता है, इसीलिए वो हमेशा 0 1 पर वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बिट्स का यूज करते हैं, बाइट्स का यूज करते हैं, किलोबाइट्स का यूज करते हैं, मेगाबाइट्स का यूज करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक का मतलब है कि बाइनरी में किस तरह से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, किस तरह से संख्याओं को घटा सकते हैं, किस तरह से संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और किस तरह से संख्याओं का डिवीजन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक में देखेंगे, यहाँ पे 4 ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है बाइनरी एडिशन, दूसरा होता है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन,
और चौथा होता है हमारा बाइनरी डिवीजन। तो ये चार ऑप्शन हमारे, चार ऑपरेशन जो है हमारे ये होते हैं, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। सबसे पहले हम बाइनरी एडिशन करेंगे। तो बाइनरी एडिशन करने के लिए क्या होते हैं, बाइनरी एडिशन के रूल्स होते हैं अपने। इसका फर्स्ट रूल क्या है, बाइनरी एडिशन का पहला रूल क्या है, अगर हम जीरो में जीरो को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम जीरो में वन को ऐड करेंगे हो जाएगा वन। अगर हम जीरो में, अगर हम वन में जीरो को ऐड करेंगे तो भी वन होगा, और अगर वन में हम वन को ऐड करेंगे तो हो जाएगा वन जीरो। वन क्या है यहाँ पे, वन है हमारा यहाँ कैरी, वन क्या है हमारा कैरी। तो ये है हमारे बाइनरी एडिशन के रूल। एक एग्जांपल देखिए हम लोग बाइनरी एडिशन का, 1 0 0 0 1 और इसमें हम जोड़ रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 0 0 यहाँ कैरी 1 यहाँ, फिर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, फिर इसमें 1 जोड़े तो हो गया 1 0, 1 0 का 0 यहाँ कैरी है 1 यहाँ। अब यहाँ कंडीशन क्या है, 1 प्लस 1 1 0, 1 0 में 1 और जोड़ रहे हैं तो 0 प्लस 1 1 और 1 1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या है 1, उसमें 1 जोड़ा तो क्या आ गया 1 0, 1 0 का 0 यहाँ, यहाँ 1, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 1 0, यहाँ 1, 1 प्लस 1 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1। तो ये हमारा बाइनरी एडिशन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, संख्याओं को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 0, 0 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी 1 होगा। फिर 1 प्लस 1 1 0, यहाँ 0 कैरी 1 यहाँ, फिर 1 प्लस 1 यहाँ 1 1, यहाँ 1 यहाँ 1, फिर 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 0, यहाँ 0 यहाँ कैरी 1, फिर 1 प्लस 1 यहाँ 1 0, यहाँ 0 कैरी 1, फिर 1 प्लस 0 1 और प्लस 1 1 0, यहाँ 0 यहाँ कैरी 1, फिर 1 प्लस 1 1 0 और प्लस 1 यानी 1 1। तो ये हमारा क्या हो गया बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन आप लोगों ने देखा, ये हम लोगों का है बाइनरी एडिशन। अब हम लोगों का क्या है नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग बाइनरी एडिशन का। इसमें देखिए 1 प्लस 1 1 0, यहाँ 0 यहाँ कैरी 1, और ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1, यहाँ 1, फिर यहाँ 1 प्लस 1 1 0 1 0 प्लस 1 1 1, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0 और प्लस 1 1, यहाँ 1, यहाँ फिर 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ फिर 1 और यहाँ 1 प्लस 1 1 0 0, यहाँ कैरी 1 यहाँ, तो वो यहाँ। तो ये हमारा क्या है, दिस इज नोन एज बाइनरी एडिशन एंड देयर रूल्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है। हम लोग देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखिए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसके रूल्स क्या होते हैं। पहला रूल होता है 0 माइनस 0 गिव्स 0, दूसरा 1 माइनस 0 गिव्स 1, तीसरा 1 माइनस 1 गिव्स 0, और चौथा होता है 0 माइनस 1 गिव्स 1, दैट इज बोरो। तो ये क्या है बच्चों, ये बोरो है, ये उधार लेके आपका आया है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं।
ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो देखिए 1 माइनस 1 0, उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 माइनस 1 होगा नहीं, यहाँ से इन्होंने ले लिया 1, तो 1 ले लिया, ये बन गया हमारा, जितना भी 1 लेंगे तो ये हमारा 2 बन जाता है, 2 माइनस 1 1, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर उन्होंने इससे लिया, फिर 2 बन गया, 2 माइनस 1 1, ये बन गया 0। अब यहाँ से लेगा ये कैरी, यहाँ से लेगा बोरो, तो ये हट गया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और ये 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। एक और देखिए सब्ट्रैक्शन, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 1। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है ये देख लीजिए, ये दो एग्जांपल यहाँ पे आपको बताए गए, ये दोनों एग्जांपल हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के। अगला देखिए, अगला है हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसको लिखिए आप। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है इसको देखना है। इसको देखने के लिए सबसे पहले रूल्स देखें उसके। पहला रूल क्या है आपका, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या मिलेगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या मिलेगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या मिलेगा 0। केवल एक ही कंडीशन होगी ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो मिलेगा 1। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1, चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर में जाएगा 1 0 0 1, फिर यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1 0 0 1। इसको ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई में ऐड होता है और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। ये आ गया 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1, यहाँ 0 प्लस 0 0 और 1, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो ये हो गया आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, यह आपकी हो गया बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब आपको इसके बाद एक सम और देखना चाहे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में, तो और देखिए यहाँ इसको 1 1 से करना है, 1 से पहले करेंगे तो आ जाएगा 1 0 1 1, फिर करेंगे तो 1 0 1 1, ये करेंगे तो 1 1 1 1 1 0 कैरी 1 और 1 1 0 1 0। तो ये हो गया आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन क्या होता है वो सीखेंगे। बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन क्या होता है, इसमें केवल दो कंडीशंस होती हैं, दो ही रूल्स होते हैं। पहला 1 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स 1 और दूसरा होगा 0 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स 0। अब देखिए यही दो रूल होते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 gives 1 and 0 divided by 1 gives 0। तो देखिए इसका एग्जांपल, डिवाइड करना है 1 0 1 से, 1 0 1 और 1 0 1, ये डिवाइड करना है, तो 1 टाइम लेते हैं 1 0 1 आएगा,
ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें तो 0 0 0 यहाँ से 1 आ जाएगा। उसके बाद ये छोटा है इससे तो ये वाली संख्या यहाँ आएगी, 1 0 यहाँ है। ये भी छोटा है इससे तो एक संख्या यहाँ आएगी, 0 यहाँ है। फिर 1 टाइम ले जाए तो आ जाएगा हमारा 1 0 1। तो ये इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा आज कि बाइनरी अरिथमेटिक क्या होती है और बाइनरी अरिथमेटिक का ऑपरेशन पढ़े आप लोगों ने, जो होते हैं आपके बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। और ये आपका बाइनरी डिवीजन आपको सामने दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ये चारों ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।